Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Shahzad Ahmad and I am taking first online class with BS 5th in the course of poetry from 14th to 18th century. In different lectures which we have discussed in our classes, we have discussed about the prologue of Canterbury tales and also discussed about the writings of Chaucer, that how he was called the father of English poetry and how the system started, the system of English poetry. And in our first online lecture, we will discuss our fifth topic or fifth character, which is about the monk. We have discussed these characters in our classes in detail, but to highlight these characters line by line, I'll explain these character line by line, but the explanation will be not extended as if we were discussing it in class. ये जो है मैं सरसरी पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों के पेपर के लिए जो है आपको लाइन बाय लाइन जो तैयारी करनी हो उसमें जो है वो आसानी हो। और इन करेक्टर्स को हमने जो है डिटेल में आप लोगों को मैंने होमवर्क के तौर पे भी दिए थे और कुछ करेक्टर्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। वो जो है इनफ है, लेकिन मैं फिर भी जो हूँ दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, तो वो जो है मैं सरसरी तरीके से जो हूँ रिपीट कराऊँगा। So first of all, about the character of monk, to peep into the condition of church of the Middle Ages, Chaucer has described different characters from church. Like for example, in classes we have discussed about Prioress, that how he had mocked Prioress, the character of Prioress, or we can also say the character of nun. And now in this lecture we will discuss about the character of monk, that how Chaucer has criticized him in his writing through creating humor in this and through irony. So he presented this character in ironical manner, which you will see in upcoming slides. And the character of monk, if we explain this character without going through the text, if we explain the character, so he is a character who is focusing on, his main focus is on worldly pleasure. As hunting is forbidden in Christianity for monks, so he is doing hunting, he is busy in hunting, and he love this thing, he wants to enjoy valuable things. So all these things are against his duties, but he is still doing it. So Chaucer is explaining these things in ironical manner, that what was at that time, at that very time, what the monk was doing. So monk is represented as a class. So the first line, a monk, a monk there was, a fair for the master, an outrider that loved Venry. Venry जो है वो hunting को कहते हैं, mastery जो है वो master के लिए use हुआ है, this is old English. A manly man to be an abbot able, full many a dainty horse had he in stable. कह रहे हैं कि a monk there was a fair for the master, मीन एक monk है जो कि जिसको जो है hunting बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो एक अच्छा जो है वो राइडर है, वो जो है एक काबिल बंदा है। और वो एबट जो है दैट इज़ ओहदा जो है, ये एक चर्च का ओहदा है जिसको हेड ऑफ मोनिस्ट्री कहते हैं, या एक चर्च के बड़े मकाम पे जो है इसको, जिस तरह अगर हम अपने इस्लाम के साथ वो कंपेयर करें तो मुफ्ती, ये कारी टाइप का जो है एक ओहदा है, सही है। तो मतलब वो भी ये बन सकता है। फुल मैनी डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल। स्टेबल जो है ये हॉर्सेस की जगह होती है जहाँ पे हॉर्सेस को रखते हैं। कह रहे हैं कि फुल मैनी अडेंटी हॉर्सेस, और इसके पास काफ़ी, डेंटी मीन्स वैल्यूएबल, काफ़ी सारे वैल्यूएबल हॉर्सेस हैं जो इसने अपने स्टेबल में रखे हुए हैं। उसके बाद कहता है कि एंड व्हेन ही रोड men might his bridle hair glingling in the whistling wind all's clear, and eke as loud as doth the chapel bell, there as this lord was keeper of the cell. कह रहे हैं कि जब ये सफ़र करता है, जब ये राइडिंग करता है, तो इसके घोड़े से जो है वो आवाज़ें निकलती हैं, मतलब जंजीर वगैरह ये चीज़ें लगी होती है घोड़े पे, तो उससे जो है वो एक आवाज़ निकलती है। और वो क्या करती है, टू क्लिंक, क्लिंकिंग की आवाज़ जो है, टू क्लिंक इन द whistling wind all clear, और ये जो है चलती हुई हवा में जो है साफ तरीके से सुनाई देती है और बहुत लाउड सुनाई देती है। इतनी लाउड सुनाई देती है, यहाँ पे ये सिमिली यूज़ हुई है, एज लाउड एज,
एंड ईक ऑल्सो, ईक जो है ऑल्सो को कहते हैं, एंड ईक ऑल्सो एज लाउड एज डॉथ द चैपल विल, कि जैसे जो है वो चर्च के बेल सुनाई देते हैं उतनी ही तेज आवाज़ इसकी घोड़े की क्लिंगिंग से जो है वो आती है। देयर एज दिस लॉर्ड वाज कीपर ऑफ द सेल, जहाँ पे ये लॉर्ड जो है ड्यूटी करता है या कीपर है उस सेल का, उसके बेल से जितनी तेज आवाज़ आती है उतनी ही इसके घोड़े से क्लिंगिंग की आवाज़ आती है जब ये राइडिंग करता है। अभी जो है यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ की है इस वजह से कि ये 4 लाइनों के बाद जो है अभी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, सही है। द रूल ऑफ सेंट मैरी और of Saint Benedict, by causing that it was old and sounded straight, this ilk monk lead old things pace and held after the new world the space। कह रहे हैं कि ये ओल्ड मॉन्क जो है ये सेंट मैरी और सेंट बेनियट के रूल्स जो है, मींस इनके जो सेंट के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास में, और उसके बाद हमने ऑनलाइन लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि ये जो है ये रिलीजियस लोग होते हैं जो कि मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ फॉलो की होती है, कुछ रूल्स बनाए होते हैं, तो ये इनको भी फॉलो करने पड़ते हैं इनके फॉलोअर्स को। कह रहे हैं कि ये कहता है कि सेंट मैरी और सेंट बेनियट ने जो मौरी सेंट मौरी और सेंट बेनियट ने जो रूल्स बताए हैं वो ओल्ड हैं और आजकल जो है वो किसी काम के नहीं है। और ये मॉन्क जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है गुजरी हुई चीज़ों पे फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा, बल्कि जो न्यू चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा ये फोकस कर रहा है। मींस ये विद द टाइम चेंज हो रहा है, खुद को चेंज कर रहा है, मतलब मॉडर्निज्म की तरफ जो है ये खुद को लेके जा रहा है, खुद को एक बहुत बड़ा मॉडर्न बंदा ये खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है। He yaf gave, yaf का मतलब give, he of not of that text pulled hen that saith that hunter been not holy man। कह रहे हैं कि वो उस टेक्स्ट को जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करता, उस टेक्स्ट पे ये ज़्यादा बिलीव नहीं करता जिसमें ये लिखा हुआ है कि हंटिंग जो है, पुल्ड हैन मीन हैन की हंटिंग जो है, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट के जहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिस क्रिश्चियन टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि हैन की सॉरी हंटिंग जो है वो बुरी चीज़ है, वो इसको जो है नहीं मान रहा है या इसको जो है होली या इसको जो है सही कंसिडर नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को वो विद द टाइम वो कर रहा है, मूव कर रहा है। नो दैट अमोंग व्हाट ही इज रेकलेस इज लाइक टिल अ फिश दैट इज वाटरलेस। कह रहे हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ है इन टेक्स्ट में, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट में कि जो मोंग जो है वो केयरलेस होता है, वो ऐसे होता है, मींस एक मोंग के लिए ये अच्छी बात, मतलब अपने ड्यूटीज को फॉलो करना, मोंग का अपना जो करेक्टर है उसकी बहुत बड़ी पहचान है, उस वो बहुत एक अच्छा करेक्टर है। लेकिन यहाँ पे चौसर कह रहा है, मतलब उसकी अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से करे ना तो मोंग एक अच्छा इंसान होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें वॉयलेट कर रहा है। तो चौसर कह रहा है कि इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो ये टेक्स्ट है या बाइबल के टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि वो मॉन्क या मतलब इनके मुताबिक, ये रिलीजियस लोगों के मुताबिक, वो मॉन्क जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता वो ऐसा है जैसे कि एक फिश जो है वो वाटर के बगैर जो है वो रह रही है, सही है। दिस इज टू से अ मॉन्क आउट ऑफ हिज क्लॉइस्टर, क्लॉइस्टर मीन मोनेस्ट्री। एक मॉन्क जो है अगर वो अपनी मोनेस्ट्री से बाहर है, मीन्स वो हंटिंग कर रहा है या राइडिंग कर रहा है, बट तिल्क टेक्स्ट हेल्ड ही नॉट वर्थ एन ऑयस्टर, तो उसकी जो है वो कोई भी औकात नहीं है। तो उनकी रिलीजियस बुक में लिखा है कि अगर एक मॉन्क जो है वो मोनेस्ट्री का काम नहीं कर रहा तो उसकी कोई भी औकात जो है वो नहीं है। तो यहाँ तक जो है आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद क्या कहता है कि एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड। यहाँ पे कंप्लीट चौसर जो है वो आयरनी कर रहा है। चौसर कह रहा है कि एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, और मुझे जो है वो ठीक ठाक लगता है। क्यों? अभी जो है यहाँ पे फिफ्थ लाइन में क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ जाता है, तो इससे पहले जो वर्ड्स है ना, जो लाइंस है, ये भी क्वेश्चंस है। चौसर जो है वो तंज़ी अंदाज में कह रहा है कि एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, मुझे तो लग रहा है कि उसकी बातें जो है वो सही हैं जो भी वो कर रहा है। व्हाट शुड ही स्टडी एंड मेक हिमसेल्फ गुड, और कह रहे हैं कि उसको जो है सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी करनी चाहिए और मोनेस्ट्री में बैठ के स्टडी करना चाहिए, ये तो इसे एक दिन जो है वो लुनेटिक बना देगा, पागल कर देगा। अपॉन अ बुक इन क्लॉइस्टर ऑलवेज टू पोर, अगर वो सारी जिंदगी जो है ये बुक्स पढ़ेगा तो इससे तो ये पागल हो जाएगा। और स्विंकिन विथ हिज हैंड्स एंड लेबर, और अगर ये हार्ड वर्क करेगा और जो है बार बार लेबर करेगा, मतलब जो है वो मजदूरी करेगा, काम करेगा, तो ये तो जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाएगा। चौसर कह रहा है कि मैं तो एग्री कर रहा हूँ कि इसको हंटिंग और ये चीज़ें करनी चाहिए, मींस आयरनी कर रहा है, मतलब तंज़िया बात कर रहा है। एज ऑस्टिन बिड
ऑस्टिन जो है यहाँ पे लिखा है, ये सेंट ऑगस्टिन के लिए जो है वो इशारा है। एज ऑस्टिन बिड, जिस तरह ऑगस्टिन कहते हैं, हाउ शेल द वर्ल्ड बी सर्व्ड। चौसर कह रहे हैं कि जिस तरह ऑगस्टिन कहते हैं कि एक मॉन्क के लिए ज़रूरी है कि वो करे, सारी अपनी ड्यूटीज जो है वो सही तरीके से इंजाम दे। तो कहता है चौसर कि एज अगस्टन बिड, हाउ शेल द वर्ल्ड बी सर्व्ड, कि कैसे जो है एक बंदा जो है वो वर्ल्ड को सर्व कर सकता है, वर्ल्ड को कुछ दे सकता है, जब तक वो ये चीज़ें ना करे, जब तक वो लेबर ना करे, मेहनत ना करे, हार्ड वर्क ना करे। फिर चौसर कहता है कि लेट ऑस्टन हैव हिज स्वैंग टू हिम रिजर्व्ड। चलो छोड़ो ऑस्टन को, अगस्टन को छोड़ो, सेंट अगस्टन को छोड़ो, उनकी ये जो फिलॉसफी है ना, ये उनके पास जो है वो हम रहने देते हैं। और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाता है अभी यहाँ से। देयर फॉर ही वॉज प्रेकसोर राइट, ग्रे हाउंड ही हैड एज स्विफ्ट एज फाउल इन फ्लाइट। कह रहे हैं कि इसलिए जो है वो क्या था, वो एक हेयर ट्रैकर था, मींस वो जो है शिकारी था। हेयर ट्रैकर मीन खरगोश का शिकार करता था, सही है, हंटर था। ग्रे हाउंड ही हैड एज स्विफ्टली एज फाउल इन फ्लाइट। कह रहे हैं कि वो जो है उसके पास हाउंड्स थे, हाउंड्स मीन कुत्ते की मतलब कुत्ते की एक किस्म है और कुत्तों को भी कहते हैं। उसके पास बड़े बड़े कुत्ते थे, ही हैड एज स्विफ्ट, और वो जो है इतने तेज भागते थे कि मतलब उनकी कोई वो नहीं है, अंदाजा नहीं है, वो बहुत ज्यादा तेज भागते थे। ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर वॉज ऑल हिज लस्ट, फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर। कह रहे हैं कि राइडिंग करना और हंटिंग करना खरगोशों की, ये इसकी सबसे ज्यादा जो है वो लस्ट मीन उसको सबसे ज्यादा मजा देने वाली चीज थी। और वो किसी भी हाल में, किसी भी कॉस्ट मीन जितने भी पैसे उसके लगते थे, वो ये काम जरूर करता था। फिर चौसर क्या कहता है कि आई साई हिज स्लीव्स परफिल्ड एट द हॉन्ड विद ग्रेस एंड दैट द फाइनेस्ट ऑफ अ लैंड। फिर मैंने उसकी स्लीव्स को देखा, उसके हैंड्स को देखा कि उसमें जो स्लीव्स हैं वो क्या है, कि उसमें जो है वो फर लगा हुआ है। फर जो है अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक में, कि फर जो है वो मॉन्क्स पे जो है वो फॉरबिडन थे, सही है, ये एक किस्म का कपड़ा है। लेकिन कह रहे हैं चौसर कह रहे हैं कि इसने जो है लैंड में मींस इंग्लैंड में जो फाइनेस्ट फर था ना, ये इसने जो है वो पहना हुआ था। एंड फॉर टू फेस्टन हिज हुड अंडर हिज चिन, और अपनी हुड को, हुड जो है जो आप आजकल के स्वेटर्स आए जो ऊपर से टोपी होती है उसमें, उसी तरह की हुड जो है वो चूहा टाइप का होता है और वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। आप लोग नेट पे सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। कह रहे हैं कि उसकी हुड जो है वो बांधी हुई थी उसके चिन से, मींस उसकी गर्दन से। चिन जो है वो तो फेस के निचले हिस्से को कहते हैं, लेकिन इसका मेन मतलब ये है कि उसके गर्दन से, चिन के नीचे जो है वो बांधी हुई थी। ही हैड ऑफ गोल्ड वो रॉड अ फुल क्यूरियस पिन, और उसमें जो है रफ जो है गोल्ड का पिन जो है वो लगा हुआ था। अ लव नट इन द ग्रेट एंड देयर वॉज, हिज हेड वॉज बाल्ड दैट शोन एज एनी ग्लास। उसका हेड जो था वो क्या कहते हैं कि गंजा था वो, और वो ऐसे चमक रहा था। अभी यहाँ पे फिर सिमिली यूज हुई है, जैसे कि एक ग्लास जो है, जैसे कि एक शीशा जो है वो चमक रहा है। उसके बाद ये है कि एंड ईक, ईक जो है ऑल्सो, एंड ईक हिज फेस एंड ऑल्सो हिज फेस, उसका फेस भी एज ही हैड बीन एनॉयड, वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा शाइनी जो है वो दिख रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने इसकी बाम के साथ मालिश कर दी हो, तेल के साथ मालिश कर दी हो। ही वॉज अ लॉट फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हिज हाई स्टीप एंड रोलिंग इन हिज हेड, उसकी आईज जो थी वो रोल कर रही थी, मतलब वो घूम रही थी उसके सर में। ऐसे लग रहा था कि जैसे फर्नेस जो है वो मतलब चूल्हा किस्म का, या जहाँ पे आग लगाते हैं, जैसे लीड के उसमें जो है लीड एक मटेरियल है, उस पे जो है वो आग लगी हो। हिज बूट सॉपल, हिज हॉर्स इज ग्रेट इन ग्रेट स्टेट, उसके बूट जो थे वो सॉफ्ट थे, एंड उसके हॉर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मज़े के, मतलब अच्छे स्टेट में थे। नाउ सर्टेनली ही वॉज अ फेयर प्रेलिट, वो जो था सर्टेनली जो है, चौसर कह रहा है कि उसके ये चीज़ें देखने के बाद जो है मुझे पता चलता है कि वो सर्टेनली एक अच्छा प्रेलेट था, मींस बिशप था, एक मतलब यहाँ पे ओहदे की बात हो रही कि चर्च का एक अच्छा मेंबर था, मींस एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर था। ही वॉज नॉट पेल एज अ फॉर पाइंट गोस्ट, वो जो है वो पीला नहीं था और ना ही जो है वो कमज़ोर था। अ फैट स्वान लव्ड ही बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट, और वो स्वान जो है एक बर्ड है, उसके गोश्त को, रोस्टेड गोश्त को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। हिज पाल्फ्री वॉज एज बॉर्न एज इन द बेरी
तो ये जो है पालफ्री हॉर्स कह रहे हैं कि इसकी हॉर्स जो थी वो ऐसे ब्राउन थी जैसे कि बेरी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मॉन्क का करेक्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम मूव करेंगे नेक्स्ट करेक्टर पे।